Assalamu alaikum. I hope so that you all are fine and doing well. It is our unit number 1, real numbers of new Punjab textbook. First of all, we have to know that what is the introduction of real numbers. So we have studies in very detail that what are real numbers in the 8th class. Real number is a collection of all the numbers that we had studies of basics according to the class 8 and up to so on. Real number includes prime, composite, even, odd, and many others. Real numbers is also divided into two more groups or sets, which are rational or irrational. First of all, we have to know what are rational and what are irrationals. Irrationals have also one type which are non-terminating and non-recurring, and rational also have two types, terminating and non-terminating. If you want to study this in detail, so you have page number 3 of class 9 new book, so you can also study in detail to it. If you open the exercise 1.1 of this unit, so there we have to first question to solve. This is identify each of the following as a rational or irrational number. First of all, we have to identify which are the rationals or which are irrational number. हमें सबसे पहले ये पता लगाना that what are rationals and what are irrational number. So first of all, we have the question 2.35, 3.5 and 3.5. We have know on the previous video that what are rationals and what are irrational, so we can see here that it is non-lasting, non-repeat, it is repeating. Rational numbers are numbers which are continuously repeating. You can see that this is repeating 2.353535, so this number is a rational number. Then I go on my next question, which is 0.6. Here we can see the slash on 6. What is the meaning of the slash? This slash means that this is continuing 666 and up to so on 6. So we are looking here, हम यहाँ पे देख रहे हैं that 0.666 ये repeating है, and I have told before you that all the repeating numbers are rational numbers, so its answer is rational number. We have third question 2.2 36067 up to so on. Here is its solution. We are looking at this is not repeating, and this is not irrational. Rationals are those which are repeating. This is not repeating, so it is irrational number. We have question number 4, square root 7. If we write it in calculator, so we have answers 2.6457513. We can see that it is no recurring. Recurring mean repeating, so it is no rational number. If it is no rational number, so it is irrational. We have the last question, which is question number 5 on this page. So question number 5 is E. If you put this alphabet or the sign on calculator, so it comes 2.71828187. So you can see they are not repeating in a sequence, so this is also is an irrational number. We have next one is pi. What is pi? Pi is the sign on the calculator which have any specific value. यहाँ पे आप लोगों को पाई नज़र आ रहा है. सो पाई वैल्यू इज इक्वल टू 3.1415926 and 3 up to so on. It is not repeating in a sequence, so it is irrational number. We have the question number 7, 2 minus k root 2 in the bracket, 2 plus k root 2 in another bracket. First of all, we have to repeat the solution. After that, there we can see that there is being a formula. यहाँ पर हमारे पास एक स्पेसिफिक फार्मूला बन रहा है, तो उस फार्मूले को हम लोग यूज़ करेंगे. हम अब देखें एक तरफ माइनस साइन है, दूसरी तरफ प्लस साइन है, तो हमें पता है यहाँ पे एक ब्रैकेट में माइनस और दूसरे में प्लस हो, तो इसका फार्मूला मिलकर हमारे पास बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का. यानी दिस वन इज़ ए, दिस वन इज़ बी, दिस वन इज़ बी. So there we have plus and minus, so this is being a minus b, a plus b equal to a square minus b square. If you open it, so a equal to 2 comma b equal to square root 2. If we put it value a square minus b square, so a square come 2 square minus square root 2, after that it is into 2. यहाँ पे 2 का स्क्वायर हम अलग से ले लेंगे, जो कि फार्मूले को ओपन करने के बाद हमें मिला है, और उसके बाद ब्रैकेट क्यों लगाइए, क्योंकि पहले से स्क्वायर रूट मौजूद है और अगेन से हम लोगों ने स्क्वायर लिया है, इस वजह से. जब इनकी वैल्यूज़ को ओपन करेंगे, सिंप्लीफिकेशन इनकी करेंगे, तो 4 minus 2 which is equal to 2, which is answer, and it is not the accurate answer. Why? Because we have to identify which is rational and which is irrational. So we are looking at it that it is equal to 2. So this number is rational number. If you have to solve only, so you can look here from it,
and if you want to understand, so please take another video from my channel. After that we have part number 8, which is 5 plus square root 11. If we put the value of square root 11 in calculator, we have come 3.3166247 up to so on, and 5 is the value of 5 equal to 5. If we plus, because question is प्लसिंग, मतलब क्वेश्चन में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे भी प्लस करना पड़ेगा. जब हम कैलकुलेटर पे अगर आप चाहते हैं इसको प्लस कर लें, वरना 3 + 5 अगर आप करेंगे तो आपके पास 8.316 इज अप टू सो ऑन आपके पास आंसर आ जाएगा. अब अगर आप देखें तो दिस नंबर इज नॉट रिपीटिंग विद a specific sequence, so this is a rational number. After that we have question number 9, square root 3 plus square root 13. So first of all we repeat the solution. After that we write square root 3 in calculator. The answers comes equal to 1.7320508007, and after that we put square root 13. So answer this come. If we plus them according to the question, so answers come this. We are looking at this that it is not repeating with a specific sequence, so it is also irrational. Okay, we have now last question, which is 15/4. इफ़ राइट इट इन कैलकुलेटर, और जाहिर सी बात है हमें आंसर जो होता है पॉइंट में चाहिए होता है. हम इस तरह तो नहीं बता सकते दैट दिस इज रैशनल दिस इज इरेशनल. सो हमें पहले एक पॉइंट में इस तरह इसको चेंज करना पड़ता है. जब हम इस पॉइंट में चेंज करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये रैशनल है, ये इरेशनल है. अगर आप इसको देखें, सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 3.75. इफ यू लुक एट आंसर, दिस इज 3.75. So you can think about it that it is non-terminating and it is non-recurring. So the answers comes about two rational numbers. Moving on number line. Here rational, irrational, terminating, recurring, non-recurring, and all the numbers are presented here. We have to represent these all numbers. If they are recurring, if they are non-recurring, rational, irrational, we have to put and point it where they are lying on a number line. This question is most easy. You have always been done this question in various classes. So the question is square root 2. अगर हम इस वैल्यू को कैलकुलेटर पे पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1.41. अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो हमारे पास आता है 1.4, क्योंकि हम लोग नंबर लाइन पे 1.41 को तो कर नहीं सकते रिप्रेजेंट. हम 1.4 को ज़रूर कर सकते हैं. नंबर लाइन ड्रॉ करनी है. पॉजिटिव नंबर है, आप लोगों को नज़र आ रहा है. 1 से 2 के दरमियान आप ज़्यादा भी बना सकते हैं. मैंने 1 से 2 के दरमियान बनाई है क्योंकि नंबर लाइज इन दीज बोथ. अच्छा जी, यहाँ पे आप लोगों ने बहुत ध्यान से करना है कि कहीं कोई पॉइंट आगे पीछे ना हो जाए. थोड़ा सा जूम कर लेते हैं. यहाँ पे आप लोग देख लें 1 है, 2 है और 1.5 की एक थोड़ी सी बड़ी लाइन होती है. आप 1.5 से एक नंबर पीछे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा. अगर इस तरह आपको नहीं समझ आ रही तो आपने इस तरह ड्रॉ करनी है. 1 2 3 4 एक साइड पे, बीच में एक बड़ी लाइन, और 1 2 3 4 एक साइड पे. इस तरह काउंटर में आपको 9 नंबर्स लगेंगे, लेकिन आप जब 1 से स्टार्ट करेंगे तो आपको 10 पूरे लगेंगे. 1.4 यानी 1.1 1.2 सॉरी यहाँ से स्टार्ट करना था. 1.1 1.2 1.3 1.4 एंड दिस इज़ 1.4. इसके ऊपर हम लोगों ने 1.4 नहीं लिखना. हमारे क्वेश्चन में जो क्वेश्चन चीज़ जो पूछी गई है, हम लोग उसके रूट 2 को रिप्रेजेंट करना है, तो उसके रूट 2 को ही हम रिप्रेजेंट करेंगे. तो ये हमारे पास इस चीज़ का आंसर आ जाएगा. पार्ट नंबर 2 है 4 1/3. इसका सॉल्यूशन हम लोगों ने पहले रिपीट कर लेना है. सॉल्यूशन रिपीट करने के बाद आप लोग देख लें, हम लोगों ने जब उसको मल्टीप्लाई किया 3 4 12 प्लस 1 इक्वल टू 13/3. वी पुट इन कैलकुलेटर तो आंसर आएगा हमारे पास 4.33. राउंड ऑफ करेंगे तो 4.3. अब इसी को सेम उसी तरह नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देना है. नंबर लाइन ड्रॉ करनी है. आप 4 से 5 के दरमियान भी ड्रॉ कर सकते हैं. सिर्फ अगर आप चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी करेंगे. नंबर पॉजिटिव है, इस वजह से हम लोगों ने जो है लाइन भी पॉजिटिव ड्रॉ की. अब पॉजिटिव लाइन है 4 और 5 के दरमियान हम लोगों ने इस चीज़ को कहीं फाइंड आउट करना है. तो हमारे पास 4.3 है. हम 4.3 को ही फाइंड करेंगे. 4.1 4.2 एंड 4.3 लाइज हेयर. तो आंसर मैंने 4.3 नहीं लिखना, वजह मैं आपको बता चुकी हूँ. 4 1/3 हम लोगों ने लिख लेना है. इसका भी आंसर आ जाएगा. ऑन द नेक्स्ट हैंड वी हैव स्क्वायर रूट 3. सॉल्यूशन रिपीट करेंगे एज इट इज़. कैलकुलेटर पे वैल्यू पुट करेंगे इक्वल टू 1.73. हम लोगों ने इसको राउंड ऑफ करना है. राउंड ऑफ इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.7. नंबर लाइन ड्रॉ करनी है. हमारे पास पॉजिटिव नंबर में 1.7 है. 0 1 और 2. 1 और 2 के दरमियान भी कह सकते हैं. 1.5 की लाइन, 1.6 1.7 और स्क्वायर रूट 3 हम लोगों ने आंसर में एज इट इज़ लिख देना है. अगला पार्ट है हमारे पास
2 3/4, 4 2 ज़ा 8 9 10 11 11/4 विद अगर हम इसमें कैलकुलेटर पे पुट करें तो हमारे पास आंसर आएगा 2.75 राउंड ऑफ 2.8। अब ये स्ट्रॉन्ग नंबर था, पिछले में 1 ऐड हो गया तो 2.8 हमारे पास इसकी अप्रॉक्सीमेशन आई है। हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन हम लोगों ने 2 और 3 के दरमियान ड्रॉ करनी है क्योंकि हमारे पास जो आंसर आया था वो 2.8 आया था। तो 2 और 3 के दरमियान मैंने ड्रॉ की है। आप और भी नंबर्स ले सकते हैं। 2 और 3 के दरमियान 2.5 2.6 2.7 2.8 एंड 2 3/5 हम लोगों ने इसका एज इट इज़ लिख देना है। पार्ट नंबर 5 है इसका 5/8। 5/8 का कैलकुलेटर पे अप्रॉक्सीमेशन इक्वल टू 0.6, 0 और 1 के दरमियान 0.6 लाइज हेयर 5/8। इसका भी यही सिंपल सा आंसर आएगा। अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने 1.1 के दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने की बारी आती है, विच इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इक्वल टू 0। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंटीजर पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर जो साथ लिखे हुए हैं दैट आर नोन एज इंटीजर्स। p/q एज अ फ्रैक्शन हमें दी है कि फ्रैक्शन में आंसर आपका आना चाहिए, तो फ्रैक्शन में आंसर लेके आना है। और q नॉट इक्वल टू 0 यानी p/q q इक्वल टू डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर 0 आना नहीं चाहिए। p का आप देख लें खुद ही, लेकिन q का आंसर आपका 0 से बड़ा आना चाहिए। फर्स्ट पार्ट है 0.4, उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख लें 0.4। अब इसको आप ओपन करेंगे तो आपको 0.444 अप टू सोन है। अब लेट कर लेते हैं कि ये जो वैल्यू है ये इक्वल टू x है, x इक्वल टू 0.444। ठीक है, ये आप देख लें। इसके दो मेथड हैं जो ईजी है, मैं आपको वो कर रही हूँ, माइट भी आपने और मेथड किया हुआ हो। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है कि हमारे पास 0 के बाद एक वैल्यू थी यहाँ पे, तो हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई 1 0 यानी एक वैल्यू है तो 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपके पास आता 0.464646 तो 4 और 6 एक वैल्यू होती तो आप उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन यहाँ पे 0.4 है तो इसलिए हम लोगों ने इसको 10 के साथ ही मल्टीप्लाई किया। 10 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.444। इनको जब आप कैलकुलेटर पे इसको लिखेंगे, सिंपली भी आप कर सकते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर 4.44 अप टू सो ऑन आ जाएगा और ये 10x आ जाएगा। अब 10x अगर आप इसको फिर से अलग करें, मल्टीप्लाई को छोड़ के, आप इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं ना, 4 प्लस 0.444, क्योंकि इन्हें प्लस करें तो ये आता है, अगर इनको अलग करें तो ये आ जाता है। ठीक है, ये आप लोगों ने अलग अलग से लिख लेना है। अब 10x एज इट इज साथ चलता आ रहा है यहाँ तक। अब 4 प्लस, अब 0.44 को हम लोगों ने ऊपर x की इक्वल टू लेट किया था, तो यहाँ पे हम x को पुट कर देंगे इसकी जगह पे। ठीक है, उसके बाद आप लोग देख लें 10x माइनस एक्स। अब यहाँ पे ये प्लस एक्स हो रहा था, यहाँ पे हमने x इस साइड पे ले आए तो ये माइनस एक्स हो जाएगा इक्वल टू 4, 9x इक्वल टू 4। अब अगर आप लोग देखेंगे तो आपको नजर आ रहा है 9x इक्वल टू 4, 9 वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे आगे हो जाएगा डिवाइड। x इक्वल टू यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई था, यहाँ पे डिवाइड, x इक्वल टू 4/9। हमारा आंसर बहुत अच्छी तरीके से वेरीफाई हो गया है। जो q था हमारा p इक्वल टू 4 एंड q इक्वल टू 9। अब q 0 नहीं आया तो हमारा आंसर ठीक था। अगर यहाँ पे q 0 का आ जाता तो हम लोगों ने कोई गलती कर दी थी बीच में। ठीक है, लेकिन अभी हमारा बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। अब वी आर गोइंग टू पार्ट नंबर 2 0.37। अब यहाँ पे दो नंबर्स आ रहे हैं, वही वाला मेथड यूज़ होगा, बस मल्टीप्लाई एक और जीरो बीच में आ जाएगा। स्लैश का मतलब था अप टू सोन, बिल्कुल इसी तरह लेट x इक्वल टू दिस वैल्यू। अब यहाँ पे दो वैल्यूज थी तो हम लोगों ने 100 के साथ मल्टीप्लाई किया है, दोनों साइड पे लेफ्ट भी राइट भी। 100 मल्टीप्लाई x, 100 मल्टीप्लाई 0.373737। अंडरस्टूड, 100x हो गया यहाँ पे और इसको मल्टीप्लाई किया 37.37, क्योंकि प्लस करें तो यही आता है, अगर इस तरह करें तो भी ये आता है, इस तरह करें तो भी यही आता है, एक ही बात है। लेकिन हमें यहाँ पे x चाहिए, इसलिए हमने लेट की वजह से यहाँ पे x इसको उठा के 0.3737 की जगह पुट कर देंगे। यहाँ पे प्लस हो रहा है, उस साइड पे x जाके माइनस हो जाएगा। 100x माइनस x इक्वल टू 37, 99x। अब इनको माइनस किया तो 99x आया इक्वल टू 37। अब आप लोग देख लें x इक्वल टू यहाँ पे मल्टीप्लाई आ रहा था, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। आपने कैलकुलेटर पे नहीं लिखना क्योंकि उन्होंने हमें बताया हुआ था, हम लोगों ने आंसर p/q की फॉर्म में लिखना है। हम कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, लेकिन उस तरह हमारा आंसर रॉन्ग आता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बताया कि p/q की फॉर्म में अपने आंसर देना है, तो आपने उसी फॉर्म में आंसर देना होगा। नाउ यू कैन सी कि हम लोगों ने 3 सवाल सॉल्व कर लिए। अब हम चौथी की तरफ चलने वाले हैं। नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। प्रॉपर्टीज एक क्लास के सिलेबस में भी मौजूद थी, इस क्लास में भी मौजूद हैं। बहुत ही ईजी प्रॉपर्टीज़ हैं, पहले उनका रिव्यू ले लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ आप लोग यहाँ से याद कर सकते हैं, और अगर आपने इन्हें समझना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो मेरे चैनल से ढूंढ लें, निकाल लें, वहाँ पे आपको इनबॉक्स में मिल जाएगा सारा कुछ। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ ब्रीफली उसमें एक्सप्लेन्ड है।
आप लोगों को पेज नंबर 7 और पेज नंबर 8 दोनों पेजेस पे ये प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, विच इज इक्वल टू a प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज प्लस b इक्वल टू a प्लस 4 प्लस b टू। यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी को फाइंड करते हैं, दैट व्हाट प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन दिस। अच्छा जी, a प्लस ये क्वेश्चन लिखा, सॉल्यूशन रिपीट किया। अब इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो होती है जिसमें तीन चीज़ें यूज़ हो रही हों, इस तरह a b c यहाँ पे नहीं है, c इक्वल टू 4 आप लोग कर सकते हैं इस तरह। शॉर्ट मेथड है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है और इसमें प्लस लगा हुआ है, तो इसका मतलब है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आप एडिशन भी लिख सकते हैं, प्लस भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अगला पार्ट हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। अब वो एसोसिएटिव है जिसमें 3 अल्फ़ाबेट्स या 3 आइटम्स यूज़ हो रहे हैं, बट यहाँ पे हमारे पास 2 हैं। सो दिस प्रॉपर्टी इज नॉन एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये बहुत ही ईजी है, पिछले सिलेबस में भी था, इस सिलेबस में भी है और बहुत आसान है। अभी आप लोग यहाँ पे देख लें, x माइनस एक्स इक्वल टू 0। आप लोगों को मैंने बताया था कि एडिटिव आइडेंटिटी एक होती है, एडिटिव आइडेंटिटी 0 है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है। अब जहाँ पे आंसर 0 आएगा वो इन्वर्स होगा, और जहाँ पे आंसर 1 आएगा वो भी इन्वर्स होगा, और जहाँ पे बीच में आ रहा होगा वो आइडेंटिटी होगी। अब अगर यहाँ पे होता है x माइनस 0 इक्वल टू x, तो वो हमारे पास आइडेंटिटी होती। आंसर में 0 आ रहा है तो ये हमारे पास इन्वर्स है, तो इसका आंसर आएगा एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ए बी प्लस सी ए इंटू बी प्लस सी ए बी प्लस ए सी। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये इसके साथ। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे अगर चेक करें तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अवर एडिशन हो रही है। पहले मल्टीप्लाई आ रहा है फिर एडिशन। पहले तो आपने इस चीज़ को आप छोड़ दें, इन तीनों को। आप अगला चेक करें, मल्टीप्लिकेशन अवर एडिशन, पहले मल्टीप्लाई फिर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन अवर एडिशन आप जब लिख लेंगे तो आप किस साइड की बात करें, लेफ्ट की, तो लेफ्ट भी आप लोगों ने लिख लिया। तो डिस्ट्रीब्यूट दिस थिंग्स अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेशन, आपके पास आंसर आ जाएगा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अवर एडिशन। ठीक हो गया। अगला पार्ट करते हैं, विच इज पार्ट नंबर 5, ए बी इक्वल टू बी है। अब ए बी इक्वल टू बी आगे भी हम लोगों ने किया है, वो क्वेश्चन था स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, 3 2 और 2 3 आगे पीछे। ठीक है, ये बी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसमें बहुत से पार्ट्स मिसिंग हैं, अकॉर्डिंग टू इट वी हैव 8 पार्ट्स इन दिस क्वेश्चन, बट आप लोग वो सेल्फ राइटिंग करेंगे अगर आपको नहीं समझ आता, सो यू कैन ऑल्सो आस्क मी इन कमेंट, तो मैं आप लोगों को दोबारा से वो समझा दूंगी। एक्सरसाइज बहुत ईजी है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। इज देयर 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन। अब हम लोगों ने इन दो के दरमियान रैशनल नंबर को, दो रैशनल नंबर्स को फाइंड करना है। 1/3 1/4 के दरमियान दो रैशनल नंबर्स को हमने ढूंढना है। अच्छा जी, फर्स्ट रैशनल की हेडिंग दे देते हैं। अब हमने दो चीज़ों को ना, दो चीज़ें जो बीच वाली मिसिंग होती हैं, एक हो दो हो, उन्हें फाइंड करने के लिए हम लोग एवरेज लेते हैं। ठीक है, एवरेज का फार्मूला होता है सम डिवाइडेड बाई 2, ये याद कर लें। एवरेज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाई 2। सम पहले फाइंड करेंगे, इसका सम जब लेंगे, नीचे वाला एलसीएम 12, 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3, तो वो आ जाएगा 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 12। तो आंसर में हमारे पास आ जाएगा 7/12। अब एवरेज सम हमें मिल गया है 7/12। अब इसको डिवाइड बाई 2 जब हम करेंगे तो हमारे पास 2। अब हम चाहें तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 1 2 2 6 12, लेकिन इस तरह गलत हो जाता है। हम लोग 2 का इन्वर्स ले लेते हैं, सॉरी रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो 7/12 1/2। अब इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 7/24 एज आ आंसर आ जाता है। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कॉमेंट में। सेकेंड हेडिंग देंगे सेकेंड रैशनल, सम इक्वल टू 1/3 प्लस 7/4। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल वैसे ये सम हमारे पास पहले का है। ठीक है, सेकेंड रैशनल हमने कैसे फाइंड किया, सम हमारे पास इसका जो था 1/3 प्लस 7/24। अब आपको एक मेथड में और बताऊंगी कि आप लोग देख लें। पीछे ज़रा मैंने किया है तो मुझे यहाँ पे 2 थे, तीसरा मुझे मिल गया, अब एक रह गया। अब अगर आप चाहते हैं तो 1 2 और 4, एक ये पहले वाला ये है, दूसरे वाला यहाँ पे जो आपने फाइंड किया वो है 7/24,
तीसरे वाला मिसिंग है और चौथे वाला ये। आप अगर चाहें तो 1/3 और 7/24 का पेयर बना लें, या 7/24 और 1/4 का। सम आपके पास मौजूद है यहाँ पे। ये 1/3 की पहले पहले मैंने सम, आप चाहे 1/4 का उसके साथ कर लें, 1/4 को उसके साथ रख लें 7/24 के साथ। मैं 1/3 को रख रही हूँ, आप 1/4 को भी रख सकते हैं। जब मैंने इन दोनों को साथ में रखा है तो उसका एज इट इज़ जो हम लोग करते हैं, तो उसका आंसर सेकंड रैशनल में एलसीएम लिया है, मल्टीप्लाई किया, आपके पास 8 + 7/24 आया है। तो मैंने अब यहाँ पे आपको 1/3 रख के दिखाया है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, इसको प्लस किया है 15/24, इसको कटिंग की है हम लोगों ने 3 के साथ, और आंसर हमारे पास आ गया 5/8। अब हमने जो तीसरा रैशनल निकालना था, अभी तक हम लोग, मैंने अब यहाँ पे आपको 1/3 रख के दिखाया है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, इसको प्लस किया है 15/24, इसको कटिंग की है हम लोगों ने 3 के साथ, और आंसर हमारे पास आ गया 5/8। अब हमने जो तीसरा रैशनल निकालना था, अभी तक हम लोगों ने क्या निकाला है, सम हमने 2 को प्लस करना था, पीछे भी 2 को किया, इसमें भी 2 को किया, सम हम लोग कर चुके हैं फाइंड। अब हम एवरेज करने जा रहे हैं, एवरेज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाई 2, फार्मूला याद कर लें। सम आया है 5/8, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे 5/16। अब 5/16 हमारे पास दो रैशनल नंबर्स आ गए, फर्स्ट इक्वल टू 7/24 एंड देन सेकंड वन इज 5/16। सो रैशनल नंबर्स बिटवीन देम आर 7/24 एंड 5/16। अगला पार्ट है मेरे पास 3 and 4, बहुत ही ईजी है। फर्स्ट रैशनल फाइंड करेंगे, एवरेज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाई 2, सम 3 + 4 7, सम इसका बहुत ज़्यादा आसान है। एवरेज को 7 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, 7/2 इक्वल टू 3.5। अब इसको हम लोगों ने ऑब्वियसली कैलकुलेटर में करना है, क्योंकि आगे हम लोगों ने इसको जो है, आप चाहें तो नहीं कर सकते, आप चाहें तो आप 7/2 एज इट इज़ रहने दें, ठीक है। हमारे पास दो नंबर्स थे, हम सेकंड रैशनल नंबर को फाइंड करने के लिए एक इसको उठा लेंगे, आप चाहे 4 को साथ इसके रख लें और चाहे तो 3 को ही रखें। मैंने 3 ले लिया, 3.5 + 3 किया तो 6.5 सेकंड रैशनल नंबर का सम निकला है। सेकंड रैशनल का एवरेज निकालते हैं तो डिवाइडेड बाई 2 जब हम करके कैलकुलेटर पे तो 3.25। सो फर्स्ट एंड सेकंड रैशनल नंबर बिटवीन देम आर 3.5 एंड 3.25। बहुत ही ईजी पार्ट था ये भी। थर्ड पार्ट इसमें मैंने नहीं सॉल्व किया, दैट वन इज़ फॉर योर सेल्फ। अगर वो ना हो तो प्लीज़ कॉमेंट में